Hello, guys. This is Piyush Badani. I am a proud ex STBN, and I'm proud because STBA has given me a lot in my personal life, in my professional life. It has taught me amazingly well. So, yeah, definitely very proud of my school. And I would also like to heartfully say thanks to Mr. Voraji for asking me to come for this and say a few words about my life journey. So, here we go. We'll start. अब हम मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगा मेरी लाइफ जर्नी के बारे में। आई वाज़ नॉट एकेडमिकली वेरी अमेजिंग, आई वाज़ गुड 70-75% होल्डर। आई वाज़ ओके बट आई वाज़ शार्प इन स्टडीज़, लाइक आई वाज़ डूइंग शार्प स्टडीज़, नॉट ब्रिलियंट इन स्टडीज़। सो और बचपन से हमेशा यही कहा गया है कि अगर आगे क्या करोगे? 7th, 8th, 9th में आते हैं तब बच्चों को कहा जाता है क्या करोगे आप आगे? कैपिटल वाइज़ मैं इतना समर्थ उस टाइम नहीं थे हम लोग कि भई आई कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर or something like that. I was not academically also, I was not brilliant. So always my parents, my seniors, my family members would ask me कि क्या करोगे लाइफ में आगे? तो that was a question which even I was like, डर था लाइफ में, डर था। आगे बढ़े, बाफना से स्कूलिंग पूरी की, फिर सीए करने गए। सीए में कहीं जाके थोड़ा लगा कि नहीं दिक्कत ना आ जाए, तो आई शिफ्टेड माई सेल्फ टू MBA. I did my MBA from Rai Business University, New Delhi. And after that, I worked for 4 years in Gurgaon. The last company was a Singapore-based company, which was dealing with FIS, equity-based company. We were dealing with FIS for Dow Jones and Dow Jones, Nasdaq equities, as well as for Nikkei 225, Hang Seng. So we were working for foreign investors. What happened was like I was working good and everything was smoothly. I was getting a decent payout as well. But whenever I used to come in Bikaner, I am the only son of my parents. So मैं उनको देखता था कि वो अकेले हैं, तो एक मन में वो रहता था कि भाई I'm doing good, but at the end of the day I have to come to Bikaner so that I can stay with my parents. I got married. My wife was also staying with me. So one fine day, my son got ill, very ill. उसको वेदांता में एडमिट करना पड़ा एंड 4-5 लाख रुपए तो यूं उड़ गए वहाँ पे। थोड़ी सी तबीयत में उनको पता भी नहीं लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था वो। कुछ फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये कर सकते हैं यहाँ। मैं बीकानेर आया, बीकानेर में मैंने छोटे से हॉस्पिटल में दिखाया यहाँ के गंगाशर के डॉक्टर से, एंड विद इन 3 days ही वॉज ओके। सो एक क्वेश्चन और आ गया कि क्रेडिटेबिलिटी के भाई दिल्ली में, और उसमें काफ़ी वो था। तो मैंने मूव ऑन करने का सोचा। उसी टाइम मेरे मैनेजर से भी बहस होगी, दे वर नॉट आस्किंग मी फॉर दीज लीव्स एंड ऑल, सो आई हैव टू come up with some answers for my life. So I thought about it, I thought deep about it, and then I moved to Bikaner. So you either need capital in your life to move forward, or you need to be very skilled academically so that you can go far away in your life. So as I said, I was not that great in both of these, so I have to move to the third thing, which is most important in life. I'll tell this to 90% of the students जो मेरे कैटेगरी में ही आते हैं। Hard work. Hard work is something which can get you far ahead. Hard work and belief in two person. Believe in yourself and believe in God. If you believe in God and yourself and you can do hard work, lot of hard work, you can achieve lot of good things in your life. मैं आ गया बीकानेर. Now, as I said, capital was not that my forte. Capital था नहीं इतना. But my mom, my dad, my wife were amazingly supportive. They supported me amazingly great. तो जो भी कैपिटल यहाँ वहाँ से करके मैंने इक्विटी बिजनेस स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड एज अ ब्रोकर, शेयर ब्रोकर। आई टुक फ्रेंचाइजी फ्रॉम एंजल ब्रोकिंग एंड आई डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मेरा हमेशा से था कि एंटरप्रेन्योर बनना है, क्योंकि बचपन में मैंने किसी लाला जी से सुना था, मेरे रिलेशन में ही उनसे पूछा गया था कि आपके बेटे क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा अगर मेरे बेटे ही सीए इंजीनियरिंग करेंगे तो सीए इंजीनियरिंग को नौकरी कौन देगा। ये बात मेरे दिमाग में फिट थी, नौकरी कौन देगा उनको। तो आई स्टार्टेड माई बिजनेस। ये बातें मेरे दिमाग में थी, ये सब लेते हुए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया अपना। इनिशियल डेज वर वेरी हार्ड, ट्रस्ट मी, अमेजिंगली हार्ड इनिशियल डेज वर देयर। पर बिलीव जो फैमिली मेम्बर्स से मिला, खुद पे जो बिलीव था, कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा, ये हर दिन सुबह अपने आप को कहता था कर लूँगा। तो स्टार्टिंग में क्लाइंट्स लाना बहुत डिफिकल्ट होता था, क्योंकि ये प्रथा रही है कि जो बढ़ चुका है उसी को आगे बढ़ाया जाता है, नए को नहीं बढ़ाया जाता। ये हमारे कल्चर में है।
तो मैंने भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की। मैंने भी उन लोगों का डीमेट खोला जो नए थे, नए इन द सेंस दोज गाइज डिड नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट इक्विटी। मैंने उनको बैठाया, उनको पीपीटीज दिखाई, उनको समझाया, थोड़ा छोटा इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कराया। पर दैट डिसीजन ऑफ माइंड गिव मी एन अमेजिंग रिटर्न, अमेजिंग रिटर्न। ट्री होता है ना, ट्री बिजनेस में यही रहता है, धीरे धीरे स्टार्ट करो, धीरे धीरे स्टार्ट होता है। एक टाइम आएगा जब वो ट्री बनेगा। एक क्लाइंट आपको 5 क्लाइंट देगा, 5 आपको 7 देगा, 7 से 10, और वो जो ट्री बनता गया, और माय बिजनेस स्टार्टेड फुलफिलिंग मेरा। एंड एज ए सेड, हार्डवर्क वॉज अमेजिंग। हार्डवर्क तो चाहिए। हार्डवर्क मैंने कमी रखी नहीं उसमें, और उस हार्डवर्क और उसकी वजह से टुडे हियर आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। और राइट नाउ इन माई लाइफ मैं उस स्थिति में आ गया हूँ कि मैं अपने आप पे गर्व कर सकता हूँ, बिकॉज आई फॉलो माई इंस्टिंक्ट, आई फॉलो माई थिंक दैट आई कैन डू इट। आई ऑलवेज यूज टू से टू माई सेल्फ दैट आई कैन डू इट एंड आई कैन डेफिनेटली बी गुड इन दिस। सो जो बिलीव था खुद पे, भगवान पे, अपने पेरेंट्स पे, और पेरेंट्स की हेल्प तो हमेशा चाहिए होती है। इनफैक्ट इन दिस आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल दैट माई वाइफ, she supported me brilliantly. People used to tell me that why your wife is working, why your mom is working, but trust me in that, if 2 members or 3 members or 4 members, more members working, the more it is good for your children. So I hope guys you are listening, और आप भी हार्ड वर्क पे बिलीव करोगे और बिजनेस में बिलीव करोगे। इफ यू कैन डू बिजनेस और व्हाटएवर यू वांट टू डू, हार्ड वर्क इज द थिंग व्हिच यू नीड इन योर लाइफ, and you can do wonders. Trust me on that, you can do wonders. Even if I can, you definitely can. Thank you.